नाजरीन, इस केस के मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान है। इसके भाई शौकत को इसी की भाभी ने अपने आशना की मदद से कत्ल करवा दिया। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ, ये मौके पर कैसे पहुंचा और पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है, इसी की जुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो बड़ा अफसोस होया तुहाडे भरा नूं कत्ल कर दिता गया। किवें पता लगा तुहानूं कि ਇਹ ਸਾਰੇ मामला चल रहे ने ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਿੰਜ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਸਲ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਅਫੀਸਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫੈਸਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਚ ਡੀਜੀਐਮ ਨੂੰ, ਉਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡੀਜੀਐਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕੋ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਖਾਰਾ ਚੌਕ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਊਨਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ, 2 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੜਕ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਮਦੁਆ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਈ? 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਸ਼ਬਨਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਨਮ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ? 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਲਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰੈਵਿੰਡ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮੰਨੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ नहीं करता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुद्दई मुकदमा का जो भाई है रमज़ान, उससे इब्तदाई पूछताछ की गई। वो भी मौका पर पहुंच गया। उससे इब्तदाई पूछताछ की गई कि आपके फैमिली में कोई तनाज़ा, कोई मसला, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? सही। तो उसने इसी दौरान एक बात की कि कुछ दिन पहले हमारी जो अपना मेरी भाभी है शबनम बीबी, उसके अरसलान नामी बंदे के साथ मरासम थे। मैं भी हमें शक है कि शायद वो हो सकता है उसने ना कत्ल किया हो। सही। तो इसी दौरान हमने शबनम बीबी का मोबाइल भी वहाँ से कलेक्ट कर लिया और इसके साथ हमने अरसलान पे भी रेड किया। तो मकामी जो कैमरा जाते हैं वो भी चेक किए, उनमें हमें एक फ़ोटो जिनकी ना मसूल हो गई। सही। तो वहाँ से हमारे वो उसमें अरसलान और तोकीर की फोटेज थी। सही। तो यहाँ से हमारा जो शक था अरसलान पे वो यकीन में तब्दील हो गया। सही। तो वहाँ से हमने अरसलान को इंटेरोगेट किया। तो दौरान तफ्तीश इसने बताया कि मेरे साथ एक और लड़का है तोकीर, जो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ इस घिनौने काम में शामिल है। सही। तो यहाँ से हमने शबनम इतराफ़े जुर्म कर लिया पकड़े जाने के बाद। सही। और इसके बाद हमने शबनम को भी हिरासत में ले लिया। और दूसरी बात यह कि शबनम के मोबाइल की CDR
अरसलान के मोबाइल की CDR और इसमें अरसलान के मोबाइल में कुछ उनकी रिकॉर्डिंग थी। उससे हमें पुख्ता यकीन हो गया और उसने इतराफ़ भी कर लिया कि ये कत्ल मैंने ही किया है और मेरे साथ तो की इसमें शामिल है। अच्छा, वो ना बयान देती है मुलजिमा जो शबनम है, वो कहती है मुझे जब टॉर्चर किया गया शौकत की जानिब से, जब उसने पकड़ लिया शौकत ने के अरसलान और शबनम के मरासम में जी तो तशद्दुद किया गया, तो कहती मैंने गुस्से में आकर कहा अरसलान को कि मैं इसे कत्ल करना चाहती हूँ। उसका ये बयान है कि उसने इसे नहीं कहा और उसने ये सब कुछ खुद ही कर दिया। क्या इस बात में हकीकत है? इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। ये शातिर औरत है। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें ये बरमला कह रही है कि आप शौकत को फायर मार दें, उसको मार दें, कत्ल कर दें। अच्छा, गलत बयानी से काम लें। ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, और CDR में राब्ते भी उसी दौरान मौजूद 6 माह से राब्ते हैं और उस दिन के भी राब्ते इनके हैं जब कत्ल हो रहा था। जी, जब कत्ल हो रहा था तो ये इसको इन्फॉर्म कर रही थी कि ये घर से मुझे लेने के लिए आ रहा है, आप इसको रास्ते में कत्ल कर दें। और मुलजमान ने इसको मारने से पहले वो जगह भी एक दफ़ा देखी है। अच्छा, पहले देखी इन्होंने विजिट किया उस जगह का भी, इसको किस जगह जाके मारना है। अच्छा, पहले भी कोशिश की गई आप ही की तफ्तीश में ये बात सामने आई और मुलजिम अरसलान भी इतराफ़ करता है कि उसने शबनम ने नींद की गोलियां भी इससे खिला दी थी शौकत को और इससे बुलाया और ये वहाँ पर नहीं गया, ऐसी बात भी सामने जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। अरसलान ने दौरान तफ्तीश ये इतराफ़ किया है कि मैंने इसको 81 की गोलियों के 2 पत्ते दिए थे ताकि ये शौकत को अपना चाय में पिला दे, मैं इसको कत्ल कर सकूं। सही, उसने पिला भी दिए लेकिन इनको टाइम नहीं मिला या क्या मसला हुआ है, इस वजह से वो रह गया और फिर टारगेट करके उस वीराने में इसको कत्ल किया गया। सबूत ऐसे तमाम शाहिद आपके पास मौजूद है जिससे इनको इनके किए की करार वाक़या सजा मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें हमने तमाम जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, रायविंड सिटी से हमारे नुमाइंदे लाहौर रंग फ़हीम अकबर सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ऐसे केसेस ख़ास तौर पर सिंधु साहब जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो मुआशरे में आजकल ये क्या हो रहा है, बतौर सहाफ़ी आपके जहन में क्या कुछ चलता है और इससे किस तरह से लेकर चलते हैं? जैसे एक खातून ने अपने ही शौहर को कत्ल करवा दिया आशना की मदद से, ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो इस केस को हमेशा की तरह लाहौर रंग ने सबसे पहले ब्रेक किया इस खबर को, और उसके बाद ये जो माशरे में हो रहा है सर, इसमें मैं जो अपनी राय के मुताबिक समझता हूँ कि ये जुडिशल सिस्टम का जो है ना वो हमारा ठीक नहीं है। अगर ऐसे अब जैसे देखें ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार भी हो गए हैं, पुलिस ने अपना काम कर दिया है और ये इकरार जुर्म भी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे पहले भी बहुत से वाक़यात हमने देखे हैं जिनमें मुल्ज़मान जो हैं वो बरी होके जल्दी से फारिग होके आ जाते हैं, अदालतों से उनको रिलीफ़ मिल जाता है। तो जब तक ऐसे मुल्ज़मान को अदालतों में कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा और निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा, लोगों में खौफ पैदा नहीं होगा, जुर्म करने का खौफ पैदा नहीं होगा। सही। तो अदालतें अपना काम बेहतर करें, ऐसे मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और करार वाक़या सज़ा इनको मिलनी चाहिए। तो इस तरह होने से मुआशरे में ये जो जराइम है इनमें कमी जो है वो पेश आ सकती है। फ़हीम, देखें यहाँ पर पुलिस जो है वो पहले इस केस की तफ्तीश करती है, तफ्तीश करने के बाद चालान मुकम्मल करके इन मुल्ज़मान को जुडिशल किया जाता है और फिर उस पर ही जो वकला हजरात हैं वो दलाइल देते हैं। क्या तफ्तीश में कोई ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनसे ऐसे मुल्ज़मान जो है वो बाहर आ जाते हैं, या मतलब अदालत पर तो ये हम सारे का सारा मलबा नहीं डाल सकते? अगर तफ्तीश मुकम्मल की जाए और भरपूर तरीके से उसके शवाहिद इकट्ठे किए जाएं तो फिर तो उनको सज़ा मिल के ही रहती है। लेकिन अगर इन चीज़ों में थोड़ी सी मतलब ख़राबी हो या उस तरह के शवाहिद या तफ्तीश उस तरह से मेरिट पे ना की गई हो और शवाहिद मौजूद ना हो, तो तब वकला हजरात जो है वो बेस बनाकर
तो मुलजमान को ज़मानत पर बाहर निकलवा लेते हैं? सर इसमें यह है कि तफ्तीश जो है वो भी आपको पता है कि मुआशरे में जो हमारा सिस्टम चल रहा है इसमें तफ्तीश में भी काफ़ी चीज़ें, इसमें जैसे जैसे इस ऐसे केसों को टाइम मिलता है तो उनमें फिर आहिस्ता 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 जो मुद्दई होते हैं उनमें भी थोड़ी सी लचक आ जाती है। तफ्तीशी के साथ भी फिर वो मिलके मामलात, पुलिस भी इसको थोड़ा सा जैसे भी मामलात होते हैं रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो बर वक्त अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, अदालत की तरफ से फैसले बर वक्त आ जाएं तो ये अहम जो है ना वो एक पेशरफ्त होगी और ऐसे मामलात से ये ऐसे केसों में जो कमी वाक़ हो सकती है। तफ्तीश तो डेफिनेटली हर चीज़ ने चलना ही, तफ्तीश के हर केस ने तफ्तीश के ऊपर चलना होता है और तफ्तीशी अगर अपना काम ईमानदारी से करें और जल्द अज जल्द चालान मुकम्मल करें, क्या सैकड़ों केस हैं जिनके चालान जो हैं वो मुकम्मल ही नहीं होते और केस चलते रहते हैं और अदालतों से रिलीफ मिल जाता है।